जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। My dear students, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। Hopefully you all will be fine. Our last topic, which we are discussing about the entrepreneurship and the economic development. We will continue our topic from the methods of training, the classroom instruction, video and film, computer assisted instructions, computer assisted instruction with video simulation, vestibular, and off the job training. What kind of training we can take from the sources? These are the types. As a classroom, yes, when you started from nursery prep 1 2 3, the basic classroom instruction from your school level, इंसान को सबसे पहले पता चलता है कि हमारा ट्रेनिंग शुरू हो गई है. Now you can take as well from video and film. You can take from the help from computer side. ठीक, computer with video like YouTube channel, simulation, or other sources of the job training. So we will discuss one by one. Case studies, role plays, conference method, lectures. These are the off job training. If teacher or if any instructor give you the task, go into the field and this is the topic, go for case studies. Yes, this is the type of off the job training. If you role play from the output or completing your case study, if you submit some kind of role play, this is also off job training. When you role play, the teacher will judge you and give the remarks after your role play. Conference method, yes, in conference you can present your case study, after effects, paper, whatever you have remarks, you can present to the conference, like the people are sitting in front of you and you will play your presentation. So a simple presentation in the classroom as a lecturer. Yes, this is the off job training. How we can judge employee performance management? These are the training methods which we are studying. The our main topic is एंटरप्रेन्योरशिप एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. बिकॉज अच्छे टीचर, अच्छे गाइडर, अच्छे इंस्ट्रक्टर इस दुनिया में पैदा होंगे तो देन वी विल स्प्रेड अवर नॉलेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान. द पाकिस्तान विल ग्रो. सो हाउ वी विल जज टू ईच person as a student, this performance is good for us or not. क्योंकि अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी then how the country will grow. The performance appraisal is a formal structured system of measuring and evaluating the employee's job related behavior and outcomes to discover how and why the employee is presently performing on the job and how the employees can perform more effectively in the future so that the employees, organization and society all benefit. Yes, why we are going to judge the performance of our employees? Because we want to a very excellent organization in future, so our employees will work like a very efficient leaders, our society will grow, our area will grow, our organization is also grow. So in performance appraisal we will have to check because we want to grow in each field. हम अपने अपने हर डिपार्टमेंट में ग्रो करना चाहते हैं. तो वी विल चेक ऑल काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एज ए एम्प्लॉय, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, एज ए एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट वेयर यू आर वर्किंग. तो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन, हाउ वी कैन जज द ऑर्गेनाइजेशन विल ग्रोइंग अप और नॉट.
अगर एम्प्लॉय अच्छे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, वो एरिया ग्रो करेगा, वो डिस्ट्रिक्ट ग्रो करेगा और वो मुल्क ग्रो करेगा. तो द इट स्टार्ट फ्रॉम द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज. सो वी विल चेक एज ए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट about the performance appraisal. With the help of performance appraisal, we will check all employees and we will criticize and we will give him the good remarks. Yes, he is going well, he is growing in the right way. So the employees performance appraisal will tell us about all things about the any kind of employee. उसकी मदद से आप सब हर चीज उसको चेक कर सकते हैं उसकी परफॉर्मेंस पर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एम्प्लॉय परफॉर्मेंस मैनेजमेंट? बिकॉज वी वांट टू ग्रो अवर ऑर्गेनाइजेशन, वी वांट टू ग्रो अवर सोसाइटी, वी वांट टू ग्रो अवर area, district and our country. So that's why we are going to check the performance of employee. Why performance appraisal? Appraisal provide information upon which promotion and salary decision can be made. उसको किस किस्म की सैलरी देनी है, उसको कौन सा प्रमोशन का डेजिग्नेशन देना है, ठीक है जी. वो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू perform the performance appraisal. Appraisal provide an opportunity for a manager and his her subordinates to sit down and review the subordinates work related behavior, then develop a plan for corrective action. Your subordinate will sit in front of you as a boss. You will take interview. You will just discuss with his last 1 year behavior. If you find out some weak points, you will discuss with him. You will take or you will make an action plan for upcoming years. You will take corrective action. All kind of discussion with him about uh, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस. आप सारी परफॉर्मेंस अप्रेजल जब आपकी भी इस किसी भी इंडस्ट्री में व्हेन यू विल ज्वाइन, यू विल सी कि योर बॉस विल सिट in front of you and he will ask different question. He will judge you कि इसका एटीट्यूड क्या रहा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, इसका टेक्निकल नॉलेज कैसा है, इसका दूसरे लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, ये डिसिप्लिनरी कैसा है. तो हम इसलिए उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं. मकसद वही है कि इंडस्ट्री ग्रो करना. इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो हमारा इलाका ग्रो करेगा, हमारा इलाका ग्रो करेगा, हमारा शहर ग्रो करेगा और हमारा पाकिस्तान ग्रो करेगा. तो ईच everyone starts from your performance appraisal. Appraisal provide a good opportunity to review the personal career plan in light of his her exhibit to strength and weaknesses. As I said, you have the good opportunity, the review of your career plan. Your boss will sit in front of you. He will lot of time ask you what is your career plan, and you will tell him this is my career plan. I want to become a general manager of this organization. I want to be like a technical manager of this city, whatever you want. So you have to study, you have to struggle. Skipper's diary. Not big P. Yes, that one. The pictures, they have a pictures of Skipper. Okay. So the performance appraisal is very important task for your boss and your career. Why we are doing this one performance appraisal? Because we want to become a good designation in future, and we will take this opportunity as a performance appraisal because we want to like see our country in the world in the good status. हम अच्छे status में अपने मुल्क को देखना चाहते हैं. So we are struggling, but unfortunately from the last 70 years what is happening here, you know, everybody. I don't want to deeply discuss with the economic and uh, क्या कहते हैं उसको, सियासत को जो है वो पॉलिटिक्स को आई डोंट वांट टू डिस्कस. बट लोग जो है वो सही अभी तक हमें हैं इस दुनिया में, बट उनको ऊपर नहीं आने दिया गया या जो भी है. सो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द परफॉर्मेंस प्लानिंग, setting performance targets. Yes, you will go to the industry, you will decide what is my target. From the left upper corner you will see
The performance planning, setting performance target. Performance planning means you will plan your performance, how I will show my performance to my boss, to my general manager, to my higher management. So you will set your targets, how will achieve my performance. The regular review and monitoring. If you are doing a head of department, working at head of department, or you are working in under supervision of someone, so everybody is looking regularly, you review and monitoring. Obviously you are also looking, review and monitoring your subordinates. आप अपने subordinates को regularly review और monitoring कर रहे हैं, और your boss are also looking and reviewing and you're monitoring to you directly. तो हर बंदा अपना काम कर रहा है. जब आप सेटिंग टारगेट कर लेते हैं, तो रेगुलर रिव्यू हर बंदे की ड्यूटी होती है कि वो उसको मॉनिटर करे. फिर आपको फीडबैक मिलती है, आप लोगों की फीडबैक देते हैं, लोग आपकी फीडबैक देते हैं. अगर कोई नेगेटिव पॉइंट है तो उसको आप करेक्टिव एक्शन करके उस चीज को ठीक करते हैं, अपने आप को भी ठीक करते हैं एज ए गाइडेंस ऑफ योर बॉस, और सबॉर्डिनेट्स को भी करेक्टिव एक्शन करते हैं एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड एवेल्यूशन, फिर उसकी एवेल्यूशन होती है कि जी ये किस जगह स्टैंड करता है. इफ यू नीड एनी ट्रेनिंग, इफ यू नीड एनी सैलरी बोनस, इफ यू नीड एनी कैरियर डेवलपमेंट, तो फिर आपको वो चीज़ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आपकी डेवलपमेंट हो. अगर आपकी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, आपको फिर सैलरी और बोनस के सूरत में आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं, आपका अच्छा कैरियर डेवलप हो जाता है. तो दिस इज द कंप्लीट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल. हमारे यहाँ आज छोटे से छोटी जो जितनी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब इस चीज पर अमल कर रही होती हैं. जब आप पहले दिन से इंडस्ट्री में ज्वाइन करेंगे, एवरीवन इज लुकिंग वेरी केयरफुली कि इस इंजीनियर को चेक करो ये क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहे होंगे, मॉनिटरिंग कर रहे होंगे. अगर आपकी हरकत, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिनरी एक्शन ठीक नहीं है, द बॉस विल कॉल यू और एंड विल गाइड यू करेक्ट एज ए करेक्टिव एक्शन कि यार आपकी ये चीजें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही हैं, आप अपने आप को ठीक करें. तो first 2 years when I joined to industry in 2000, so I too much felt कि जी ये मेरे साथ क्या हो रहा है. तो असल में पेरेंट्स के साथ तो हम थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर भी लेते हैं, अगर वो कह भी रहे हो तो हम उसको निगलेक्ट भी कर देते हैं, बट एज ए जॉब होल्डर हमें आपको सरवाइव करने के लिए वट एवर द जनरल मैनेजर इज सेइंग, वट एवर द बॉस इज सेइंग, हमें उस हिसाब से अपने आप को एटीट्यूड को चेंज करना पड़ता है. We will more study about the performance management cycle in deeply defining भाई performance standard and targets. भाई इनायतुल्लाह इनायतुल्लाह मेरी बात सुन. Who's 7EE40? I will mark absent this person very clearly. He doesn't know the attitude and with the class. He is not, I think, present. Side पर रख के वो चला गया है. How I can mute him? Okay. 04 is absent today. Its mic was on and disturbing to the class very clearly. आप खुद कहीं और चले गए और क्लास ऑन की हुई है. 04 is absent today. Mr. CR informed to him. Now defining performance standard and targets. How we will set our targets, how we will define our performance standard कि हमें किस स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी परफॉर्मेंस को लेके चलना है. Defining the performance standard means making sure that you and your subordinates agree on his her duties and targets that you expect. जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है अपनी सबॉर्डिनेट से या अपने बॉस से, आपको वो स्टैंडर्ड अपने बॉस के साथ तय करने हैं या अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ तय करने हैं कि दिस इज आवर टारगेट एंड वी विल वॉच यू. ठीक है जी, जो भी आपने स्टैंडर्ड, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, यू विल सिट टुगेदर एंड डिसाइड व्हाट्स योर टारगेट,
दिस इज अवर स्टैंडर्ड एंड वी विल वॉच यू। सिमिलरली द बॉस विल वॉच यू कि दिस इज योर स्टैंडर्ड, आप अपनी टीम को इतने टारगेट्स तक सेट करें। Appraising performance, that means preventing performance means comparing your subordinates actual performance to the standard target set in the step 1। जब आप ये पहला स्टेप कर लें, जब टारगेट और वगैरह हर चीज सेट कर लें, तो एक्चुअल जो परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड से कितनी दूर है वो उसको अप्रेजिंग परफॉर्मेंस कहते हैं। अगर थोड़ा सा गैप होगा तो देन द कंपनी विल ट्रेन यू। अगर आप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं तो द कंपनी विल गिव यू प्रमोशन और बोनस और फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सो द प्रोवाइडिंग फीडबैक फॉर द डेवलपमेंट, आपको फीडबैक देना बहुत जरूरी है क्योंकि आप एक फीडबैक डेवलपमेंट चाह रहे हैं, अपनी भी चाह रहे हैं और लोगों की भी चाह रहे हैं। अगर आप प्रॉपर सही तरीके से फीडबैक नहीं देंगे देन हाउ यू कैन इम्प्रूव योर स्किल्स, हाउ यू कैन डेवलप योर बाय योरसेल्फ, सिमिलरली एज पर योर टीम। तो फीडबैक आपको टीम की भी देनी है, फीडबैक आपको आपका बॉस आपकी भी आपको देगा। तो ये पूरा एक कंप्लीट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल होता है कि आप सबसे पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को टारगेट को सेट करें कि दिस इज द स्टैंडर्ड एंड वी विल फॉलो लाइक दिस। उसकी तरह फिर जब अप्रेजल परफॉर्मेंस होती है तो वो उसको फिर जज किया जाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं या आपका सबॉर्डिनेट कहाँ स्टैंड करता है, आप उसके साथ डिस्कस करते हैं। सिमिलरली जब आप स्टैंडर्ड को मैच करने के अगर काबिल हैं तो ठीक है, अगर थोड़ा सा गैप है तो फिर आप उसको प्रोवाइड फीडबैक करते हैं। अगर बॉस आपकी अप्रेजल कर रहा है तो वो आपको फीडबैक देगा। इसी तरह जब आप अपने सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं तो आप उसको भी अपनी फीडबैक देंगे कि दिस इज द गैप बिटवीन योर परफॉर्मेंस एंड द स्टैंडर्ड विच द स्टैंडर्ड इज सेइंग। जो भी स्टैंडर्ड्स कह रहा है उसके मुताबिक आप यहाँ पर स्टैंड करते हैं। द प्रॉब्लम इन द परफॉर्मेंस अप्रेजल, लैक ऑफ द स्टैंडर्ड्स। हमारे पाकिस्तान में क्या कल्चर है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल की क्या प्रॉब्लम पेश आती है। लैक ऑफ द स्टैंडर्ड्स का मीन कि आपने जो भी स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं वो आपके सबॉर्डिनेट्स को पता ही नहीं होता है। तो इफ एनीबॉडी गेट ट्रेनी इंजीनियर डेजिग्नेशन व्हेन ही जॉइन टू द एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, इफ द कंपनी गिव यू द डेजिग्नेशन लाइक ट्रेनी, तो इट मींस यू आर इन द ट्रेनिंग फेज। तो उस वक्त तो आपकी कोई परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होती और ना ही आप किसी की कर सकते हैं। जब आप ट्रेनी अगर नहीं हायर होते और ट्रेनी इंजीनियर के अलावा आपको कोई असिस्टेंट डिग्री या असिस्टेंट इंजीनियर या असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन दी जाता है, देन यू बिकम ए फुल इंजीनियर या असिस्टेंट इंजीनियर कि जी यू विल डू परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ योर सबॉर्डिनेट्स और द बॉस विल परफॉर्मेंस अप्रेजल टू यू, आपकी करेगा और आप अपने सबॉर्डिनेट्स की करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या होती है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स मीन कि यू डू नॉट वांट और यू डू नॉट इन्फॉर्म टू योर सबॉर्डिनेट्स दीज आर द स्टैंडर्ड्स व्हिच आई विल फॉलो टू चेक योर परफॉर्मेंस। सो व्हाटएवर द स्टैंडर्ड्स, प्लीज माइक को म्यूट रखें। ओके, व्हाट आर द लैक्स। ओके, आपके जो स्टैंडर्ड हैं जो आप सेट करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, जो दूसरे आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, आप उसके साथ स्टैंडर्ड सेट नहीं करते। इसी तरह जब बॉस आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करता है, अगर वो आपके इंक्रीमेंट कम परसेंटेज लगाए, जैसे मैं अक्सर अपने बॉस के साथ डिबेट करता था बड़ा ऑनेस्टली, मैं कहता था सर आपने मेरी परसेंटेज क्यों कम लगाई है, तो वो कहते थे जी ये वजह थी। मैंने कहा जी आपने आज तक तो मेरे से डिस्कस नहीं की। तो वो आगे से लाजवाब हो जाता था कि यार ये वाकई बात तो ठीक है इसकी। मैंने कहा सर आप मेरे से कम से कम डिस्कस तो करें कि जी मेरी ये प्रॉब्लम है और नेक्स्ट टाइम मैं उसको ठीक करूंगा। कहता जी ठीक है नेक्स्ट टाइम आप मैं आई विल बी केयरफुल। मैंने उसके मुंह से निकलवाया, उसको शर्मिंदा किया, ठीक। लेकिन मैंने उसको बाद में ये कहा है कि मैंने कहा जी आप डिस्कस करें और अपने सबॉर्डिनेट सारों के साथ डिस्कस करें जो जो से आप चाहते हैं। हम अपने डिपार्टमेंट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मैं आपका असिस्टेंट और आप मेरे बॉस, ठीक है जी। अब वो कई दफा बॉस जो है ना वो इंस्ट्रक्शन नहीं मानता, वो कहता जी यू आर बॉस और आई एम ए बॉस। तो बड़ा उसको किसी खास तरीके से जब कोई फंक्शन हो रहा हो, खाने में साल बाद लग जाए, 6 महीने लग जाए, आप किसी ऐसे मौके पर बैठे हैं, क्या क्या लग रहा है और आप खाना शाना खा रहे हैं, तो आप फिर वहां थोड़ा सा हल्का सा मूड करके कह सकते हैं सर
परफॉर्मेंस अप्रेजल का तो मेरा ख्याल है स्टैंडर्ड ये होता है, हमें फॉलो करना चाहिए, ठीक है, मेरी आपने प्यार मोहब्बत में बंदा सुना देता है, ठीक है जी, वो नेक्स्ट टाइम फिर आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो स्टैंडर्ड लैग कर रहे होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होना शुरू हो जाते हैं कि जी उसको बताया जाता है कि जी ये स्टैंडर्ड है विच वी विल फॉलो एंड वी विल वॉच यू एंड वी विल मॉनिटर यू योर परफॉर्मेंस। सो अगर उस चीज को लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स को खत्म किया जाए तो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी हो सकती है, यू कैन इम्प्रूव, जो कंपनी कैन इम्प्रूव, इसी तरह सिमिलरली द ओवर कंट्री विल इम्प्रूव। पुअर फीडबैक टू एम्प्लॉय, अगर आप पुअर फीडबैक भी नहीं देंगे, कोई आपके साथ दुश्मनी है, कोई लड़ाई है, बंदा बहुत अच्छा है लेकिन आप उसको कह देते हैं जी अच्छा है सर, मेरा ख्याल से उसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, ड्यू टू हिज एटीट्यूड, ड्यू टू हिज बिहेवियर, कोई भी आप वजह बता देते हैं उसको, वो भी एक प्रॉब्लम है उसकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में। हमेशा सच बोल के उसको क्लियर करना चाहिए, अदरवाइज आपकी परफॉर्मेंस भी आपके अगेंस्ट भी कोई बोल के फीडबैक देगा तो वो भी झूठ बोल सकता है। तो इसलिए अपने आप को पुअर फीडबैक एम्प्लॉय नहीं करना चाहिए। पुअर मेजर ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरमेंट के कई तरीके होते हैं परफॉर्मेंस को अप्रेजल को चेक करने के लिए। अगर आप वो अच्छे तरीके वाला मैनेज या गुड मैनेज करने के लिए गुड मेजरमेंट्स नहीं कर रहे तो भी आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल अच्छी तरीके से नहीं होती। इररिलेवेंट और सब्जेक्टिव स्टैंडर्ड, जो आपके स्टैंडर्ड में आता ही नहीं है, जो आपका टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल हट के है, आप उसको स्टैंडर्ड में रखा हुआ है कि जी आपका टेक्निकल नॉलेज ये वाले पोर्शन में भी स्ट्रांग होना चाहिए, बट वो हमारी लाइन का नहीं होता। सपोज कि जी जो मेंटेनेंस के ज्यादातर इंजीनियर होते हैं उनसे कहा जाता है जी आप इलेक्ट्रिकल का भी जानते हो, मैकेनिकल का, दोनों चीजें जान, मैकेनिकल इंजीनियर कहता है जी मैं इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर नहीं हूँ, मैं तो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल नहीं जान सकता, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सारे जो स्टैंडर्ड है वो मेरे साथ कोरिलेट ना करें। तो ये प्रॉब्लम परफॉर्मेंस अप्रेजल में पेश आती है। नेगेटिव कम्युनिकेशन मीन कि आपके खिलाफ या आपके हक में कोई भी नहीं है, आप सब नेगेटिव बोल रहे हैं आपके लिए, तो आप परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी है लेकिन नेगेटिव कम्युनिकेशन हो रही है तो भी आपकी परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। फेलियर टू अप्लाई एवेल्यूएशन डाटा, आपको कोई डाटा ही नहीं देता, आपको उस बंदे के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं बताना पसंद करता, आपको उस की जब डाटा नहीं मिलेगा तो फिर आप उसको एवेल्यूएट कैसे करेंगे, तो ये भी परफॉर्मेंस अप्रेजल में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। What are the performance appraisal elements? Competencies, performance result। अब ये जो वो चीजें हैं जो आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल में देखी जाती हैं कि आपके जो दो हैं कि इसकी कॉम्पिटेंसी क्या है और उसका रिजल्ट क्या है। दो मेन परफॉर्मल अप्रेजल के एलिमेंट्स हैं, कॉम्पिटेंसी और आपकी रिजल्ट। Creation is defined as the tendency to generally recognize idea, alternative possibility that may be useful in solving problem, communicating with others, and entering the ourselves and others. Creation is the ability to come up with new ideas and to identify new and different ways of looking at a problem and opportunities. अब ये आइडिया कौन क्रिएट करेगा कि हमने अच्छी परफॉर्मेंस अप्रेजल करनी है, कि कॉम्पिटेंसी स्कोर क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस रिजल्ट का क्या स्कोर होगा, ओवरऑल स्कोर क्या होगा, फिर हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि इसको आगे कैरियर के लिए नेक्स्ट डेजिग्नेशन में मूव किया जाए ना किया जाए। वी नीड डिफरेंट आइडियाज, ठीक है जी, वी नीड, हर बंदा एक अपनी अप्रोच के साथ जाता है, हर बॉस अपनी एक विलिंग पावर विलिंग के साथ जाता है। तो क्रिएशन जो है वो बेसिकली आपकी, आप डिफरेंट आइडियाज खुद पढ़ते हैं, इंटरनेट से सर्च करते हैं, या ऑल्टरनेटिव मीन आप किसी दूसरे से पूछते हैं आपके यहाँ प्रमोशन कैसी होती है, हमारे यहाँ तो ये कल्चर है, हमारे यहाँ तो ये स्टैंडर्ड है, हमारे यहाँ तो ये सिस्टम है। उस तरह आप लोग एक दूसरे से फिर कम्युनिकेट करते हैं, लिखा हुआ ना कम्युनिकेट विद अदर्स। जब कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होती जाती है एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री से, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली क्रिएशन पैदा हो जाती है और आप अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल को मजीद से मजीद अच्छा करते चले जाते हैं। तो द क्रिएशन इज द एबिलिटी टू कम अप विद न्यू आइडियाज एंड टू आइडेंटिफाई न्यू एंड डिफरेंट वेज। ठीक है जी, जब आप क्रिएशन करना बहुत जरूरी है। अब अगर आप कोई 50 साल या 20 साल अप्रेजल फॉर्म लेकर बैठे हुए हैं जहां पर आप कोई डिजिटाइज दौर में किस तरह लोगों से डील करते हैं, किस तरह डिजिटली आप किस तरह बिहेव करते हैं, हमारा ये डिजिटाइज दौर चल रहा है, तो फिर क्रिएशन तो ना हुई ना। तो आपको लोगों की प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए अपने परफॉर्मेंस अप्रेजल को क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उस तरह आके अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर एंड इंडिविजुअल, सबसे पहले गवर्नमेंट को इस चीज के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए, फिर वो गवर्नमेंट प्राइवेट और ऑर्गेनाइजेशनों में आता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिविजुअली वो
क्रिएट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी इंस्टीट्यूट में जब वो परफॉर्मेंस अप्रेजल उस तरह का क्रिएट करती है, तो फिर वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनों में ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है, और आप फिर एज ए इंडिविजुअल भी उसको फॉलो करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए भी, और जनरल मैनेजर आपकी परफॉर्मेंस के लिए भी उस इंडिविजुअल को फॉलो करता है। तो बहरहाल फिर इट इज अनलाइकली फॉर एनी गवर्नमेंट टू क्रिएट जॉब्स फॉर दी 20-30 मिलियन जॉबलेस पाकिस्तानी, एज सच पीपल वी हैव टू बिकम ए क्रिएटर एंड जॉब सीकर। तो हमें भी बजाय कि हम जॉब हासिल करें और अपनी रिस्पॉन्सिबली लोगों की परफॉर्मेंस के लिए अदा करें, आपको एज ए जॉब क्रिएटर बनना चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के मौके मिलें। ये स्टील ऑर्डर एक कंपनी है, ये 1946 में बनी थी। ये जस्ट फॉर नॉट पार्ट ऑफ द योर कोर्स, आई एम जस्ट वांट टू डिस्कस द एग्जांपल ऑफ हाउ टू क्रिएट द जॉब। इस बंदी ने 68 इयर्स की उम्र में 1946 में एक कंपनी बनाई, जिसका नाम अब है एसटी ऑर्डर कंपनी। उस पर अब 40,000 ऑल ओवर द वर्ल्ड 40,200 जो है फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो आपको ये भी एक क्रिएटर था जिसने जॉब अपॉर्चुनिटी दी लोगों को, और एक जब कंपनी तरक्की करती है, फिर मुल्क तरक्की करता है, तो आपको तमाम चीज़ों को कोर फोकस करना पड़ेगा, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर के तौर पर। सीकर का मतलब ढूंढना और फाइंड आउट करना कि मैंने ये जॉब करनी है, आप जॉब क्रिएट करें लोगों के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब मिले। इसी तरह ये यूनाइटेड स्टेट में ये 16 जून 1903 को 111 साल का जो बंदा था, तो ये फोर्ड को फर्दर इसका कंपनी का नाम है, और आजकल इसके 2,24,000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। ये भी इसी ने जॉब क्रिएट की थी 1903 में, 111 साल की उम्र में। तो there are the different paths. You can join government job, you can join private job, you can create a new job for the people of Pakistan. It's up to you what you want to do. आप क्या करना चाहते हैं। जापानीज एक्सपीरियंस कुछ शेयर किया हुआ है इसमें कि जी ये इसमें क्योंकि जापानीज एक्सपीरियंस का भी आपका पार्ट है कि जी जापानीज एक्सपीरियंस के मुताबिक जो स्पेशलिस्ट हैं वो ज़्यादातर ट्रैवलिंग कंपनीज के साथ अटैच हैं। ठीक है जी, लोग ट्रैवलिंग का ज़्यादा बिजनेस करते हैं, कोई इलाका ऐसा डेवलप कर लेते हैं मिलके कि लोग वहाँ के लोगों उस आके वहाँ पर विजिट करते हैं, और वहाँ के लोगों को, वहीं के लोगों को उस इलाके में जॉब दी जाती है। तो जापानीज एक्सपीरियंस जो है वो आपको हेल्प करता है कि आप ट्रैवलिंग का कैसे प्लान बनाएं, आप जापान में किस जगह से एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जापानीज क्या करते हैं। इसीलिए इमरान खान भी आपकी ये जो है शुमाली इलाका जात जिसको हम कहते हैं कि जी अब्रॉड साइड से लोग आए, डॉलर इधर अंदर आए और तरक्की करे, इसलिए वो अमरी और यूबिया और नथिया गली और इस तरह के कलाम इलाके जो हैं उनको बड़ा इस वक्त सुना है बड़ी तेजी से तरक्की की जा रही है, ताकि लोग यहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्ट करें, वहाँ के लोगों को उसी इलाके में जॉब मिले, और फिर अब आपके जो अब्रॉड साइड से जो फॉरेनर हैं वो विजिट करें। तो जापानीज ने इस चीज़ से बहुत कुछ पैसा हासिल किया, लोगों को जॉब क्रिएट की, बजाय के जॉब देने के लिए आप जॉब हासिल करें, तो उन्होंने ट्रैवलिंग पर बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, और लोगों के लिए अंदर ही उस इलाके में उसी इलाके के लोगों को जॉब दी, और फिर वहाँ के लोगों को विजिट करने के लिए अब्रॉड से या फॉरेनर उस जापानीज इलाकों का विजिट करने जाते हैं, जिसमें टोक्यो और कोटियो है, जो बड़े मशहूर है कि जी जापान हम विजिट करने जा रहे हैं, और हमारा 15 दिन का विजिट है, हम वहाँ लोगों के शहर देखेंगे। तो यही कल्चर हमें पाकिस्तान में क्रिएट करने की जरूरत है कि जापानीज एक्सपीरियंस को यूज किया जाए। द फाइनल कंक्लूजन ये आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि लेस देन 1 मिनट रह गया, मैं अटेंडेंस ले लूँ इससे पहले कि ये खत्म हो जाए।